Hello everyone, welcome to Physics Orbit. My name is Smriti Sarubese, back with the lecture part 2 series that you know that we have started the modern physics, right? So we have completed the first part, that is dual nature of radiations. Right now I will completely focus on the atomic physics, that is atom. Okay, so let's just not waste the time, not kill the time, and start the syllabus. And respective greetings to all of you. Well, it may be morning, afternoon, evening, that depends upon the time that you are seeing the video. So respective greetings, and let's get started. Okay, chalo. So this is lecture number 1, in which we'll start the course, that is atom, right? Okay, no issue. So in this content, we'll start from the alpha particle scattering experiment. Those I will not explain each and every part of the atomic physics, as we have discussed, that we'll focus on those part from which the questions are coming. Okay, and I will give you a brief idea about the atomic physics. There is no doubt about it, but we will start from the alpha particle scattering experiment. Okay, so today's goal is alpha particle scattering experiment, and the second one is Rutherford nuclear model of atom. Okay, good. Let's move to the alpha particle scattering then. Well, before starting alpha particle scattering, we should know about the alpha particle, right? What do you mean by alpha particle? Well, alpha particle is nothing but helium nucleus. Helium nucleus. Well, it's not about the helium atom. Normally what you know is that helium, this hydrogen helium, right? So atomic number is 2 proton, 2 neutron, and 2 electron outside of the nucleus, right? But as we are studying helium nucleus, so that means it is 2 proton and 2 neutron, that's all. There is no involvement of electron. Okay, so alpha particle is nothing but helium nucleus, or you can say doubly ionized helium atom. We have already discussed about the ionization, right? What do you mean by ionization? Like if you are extracting the electron from the system, normally if you have a helium atom, let it be, this is helium atom. Okay, doubly ionized, what does that mean? That you are extracting the electron doubly ionized, मतलब दुईटा इलेक्ट्रॉन के तुम काढ़ी दउछ, बुझि पारुछ? तो जदि दुईटा इलेक्ट्रॉन अछि, दुईटा इलेक्ट्रॉन के हम काढ़ी देली, तो बचला काना 2 proton 2 neutron. This is nothing but helium nucleus. So alpha particle is nothing but doubly ionized helium atom or helium nucleus. Okay, so we will take the alpha particle and we will perform an experiment. Okay, that experiment name is alpha particle scattering experiment. Okay, this is all about the basic start. Okay, let's move to the next slide then. So in the year of 1911, well, imagine पढ़ुचु that alpha particle experiment, Rutherford alpha scattering experiment. Rutherford बहुत बड़ scientist गोटे थिले, है ना? तांकर गोटे group थिला. Okay, he was not the single scientist जे कि alpha scattering experiment उपरे काम करिथिले. से तांकर colleague या फिर बोलबो तांकर तळे जे काम करूथिले, से मके गोटे suggestion देइथिले कि तमे alpha particle scattering experiment conduct करो. जिन Rutherford थिले, he was a very rich man. Okay, तांकर पाके पैसार कमी नहीं थाई, तो सेति लगी से काना कले गीगर एंड मार्सडेन ई दुई लोग के कहले कि तमे हला गोटे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो बाय टेकिंग अल्फा पार्टिकल. तमे विल स्टडी अबाउट द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. नॉर्मली काना ही थिला कि जिन Rutherford alpha scattering experiment हमें पढ़सु, that experiment has been carried out by these two men, H. Giger and Ernst Marsden. बुझि पारुछ, इटा Rutherford नहीं करिथे. That was the idea. This was the idea given by the Rutherford, or you can say कि Rutherford suggested Giger and Marsden to conduct the experiment, to conduct the alpha particle scattering experiment.
Okay, in this experiment he was taking the naturally occurring alpha particle. चलो start कर दूं. Well, let me just change the color of the pen. Okay, so I am taking a lead box. This is lead box, and I am taking a source of alpha particle. Here it is source. Well, आमे सब details पढ़मा source of alpha particle. Let's say कि bismuth. I am taking bismuth 83. Okay, we'll study about it. जितने nuclear physics पढ़मा ना मैं total तुमके बुझेबी कि what do you mean by source of alpha particle. एबर लगे इतकी जानी था कि this is a source जिन जगह रोकी alpha particle या फिर कोई वो कि doubly ionized helium nucleus टा बाहर उची एमती की ना. Okay, alpha particle बाहर उची. Okay, and this alpha particle is naturally occurring alpha particle. Okay, जार energy की लगभग 5 mega electric volt to 7.7 mega electric volt तर energy रोची, because it is a high energetic beam ना. Yes or no? Because source of alpha particle is helium nucleus doubly ionized, so it has the energy लगभग 5 to 7.7 mega electric volt. Okay, right now the alpha particle देखो lead box अच्छे, lead box रो भीतरे alpha particle रो source अच्छे, तो alpha particle से जगह arbitrary बाहर उची एमती थोड़ी ना गोटे डायरेक्शन रे बाहर बा सब बड़े बाहर बा हो कि नहीं. बट तमे पचारि पारबो कि why I am taking the lead box. आमे lead box जेहेतु नौचु तार किछि तो रीजन थिबा, because lead रो गोटे प्रॉपर्टी अछि कि it absorbs the radiation. Okay, extra amount of radiation. lead box रो काम काना it absorb the radiation. जिन alpha particle अछि that is very dangerous. बुझि पारुछ. गाड़ी में कोई थिल ना गोटे रेंज देथिली गाड़ी में है ना, गाड़ी में XUV in my what range. तो देखो alpha particle जिन आसुचे तार पाके बहुत एनर्जी अछि. ओके, एटा तो किछि दरकार नहीं ना एवर लागि, चलो लिवे देतो. एटा तुमके कहिथिली गोटे रेंज गाड़ी में मतलब गामा एक्स-रे अल्ट्रा वायलेट विजिबल है ना, जानि छ सेटा सेतिरे आउ टाइम कंज्यूम नहीं करू. तो ई जगह जिन alpha particle बाहरुची alpha particle scattering experiment मतलब alpha particle जाय कि ना गोटे जगह रे पिटी हेबा. कार संगे पिटी हेबा? we are taking the gold foil. Okay, we are taking the gold foil. why we are taking the gold foil जानि जीवा. बट एबे सुनो कि alpha particle ई जगह रे बाहरुची, तापरे ई जगह रे मुई नेली, ई जगह रे मुई नौचे lead bricks. ओके, बुझो ई जिनिस lead bricks लिखि दो. इस जगह रे मुई नहीं होली lead bricks. again I am taking the lead material. तार मीनिंग काना कि alpha particle गोटे डायरेक्शन रे जाई पारबे. चलो मुई बुझे देउछा lead bricks. देखो हमर पाके सोर्स अछि alpha particle रो bismuth 83 सेटा lead box रे रखि जिंदा कि रेडिएशन याडे साडे नहीं आसु. सब रेडिएशन याडे आसुचे हो कि नहीं. बट सब रेडिएशन जदी स्कैटर्ड ही गला बेला हम एक्सपेरिमेंट केंदे करि पारमा. बुझ पारुछ. आमे इलोके हला आमे हमर गोल्ड फॉइल नहीं छु, इलोके आमे हमर गोल्ड फॉइल नहीं छु, एंड आमे चाहू छु कि सब अल्फा पार्टिकल आसी कि ना इतार संगे पिटी हियो एंता आसी कि ना इतार संगे पिटी हियो. आ इतार संगे पिटी हला परे किते स्कैटर्ड होछ मतलब किते याडे पास करि जाउचे, किते याडे जाउचे, किते याडे जाउचे सेटा आमे जानबा कि चाहू छु. फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप बुझ जाओ तबे आराम से बुझ जीवो हला. तो अल्फा पार्टिकल जेन स्कैटर्ड होथिला मुई जगह लीड ब्रिक्स नेली. लीड ब्रिक्स नेला परे काना हबा कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेडिएशन याडे जदी याडे जाउचे रेडिएशन ए अब्जॉर्ब करि दबा. आउ सबु अल्फा पार्टिकल के से ट्राई करबा कि गोटे डायरेक्शन रे मूवमेंट करेबा लागि. तो कहि पारबो तमे कि इट कोलिमिनेट्स द अल्फा पार्टिकल, इट कोलिमिनेट्स द अल्फा पार्टिकल. बेले बुझी पारुछ मतलब अल्फा पार्टिकल के गोटे डायरेक्शन रे मूवमेंट करबा के बाध्य करबा. तो इट अल्फा पार्टिकल हला गोटे डायरेक्शन से जीवा के ट्राई करूछ. ओके, तो लीड बॉक्स रो काम काना या फिर लीड मटेरियल रो काम काना इट अब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेडिएशन. ओके, वेरी गुड. तापर जिन अल्फा पार्टिकल गला तो अल्फा पार्टिकल इ लोग जाई के स्ट्राइक कला. बुझ पारुछ. तो अल्फा पार्टिकल जदी गोल्ड फॉइल नहीं थिता तो बाबू एंता पड़ेता. ओके,
किंतु जेहेतु अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल संग पिटी हबा तो से किछि अमाउंट ऑफ किछि डायरेक्शन रे किछि एंगल से काण करबा स्कैटर्ड हबा यस और नो तो एटा हला स्कैटर्ड हला let the angle with alpha or theta whatever that you can take तो एटा याड अल्फा पार्टिकल जाउची याड भी अल्फा पार्टिकल जाउची तो ई जिन अल्फा पार्टिकल जाउची हमें जानमु केनता कि ना कि याड जाउची सेड जाउची तो हेती लागि याड गोटे कलेक्टर याड गोटे कलेक्टर या फिर कोइ पारबो कि सर्कुलर स्क्रीन गोटे में रखु छ सर्कुलर स्क्रीन which is made of zinc sulfide okay and in this theta is called scattering angle मतलब केन एंगल रे अल्फा पार्टिकल टा स्कैटर्ड होची ओके ठीक अछि तो ई जेन सर्कुलर स्क्रीन रहला जिंक सल्फाइड व्हाई यू आर टेकिंग जिंक सल्फाइड बिकॉज़ जिंक सल्फाइड रो गोटे प्रॉपर्टी अछि दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी मने पको कैथोड रे तापर डिस्चार्ज ट्यूब पडिथिलो जेते बेले गोटे पार्टिकल माने जाय कि गोटे जगह पिटी होचन और लाइटिंग प्रॉपर्टी शो करचन झकझकुच बुझि परछ दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस तो ई जेन जेडएनएस रो फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी अछि तो अल्फा पार्टिकल आसी कि ना जदी इलग स्ट्राइक कला तो इलग गोटे स्पॉट क्रिएट हे गला जेंता कि मु एबे गोटे डिटेक्टर इलग नेली हला इलग जदी गोटे मु डिटेक्टर नेली सर्कुलर डिटेक्टर तो इलग जदी मूवमेंट करबी तो जिन जगह स्पॉट टा अछि मु जानि पारबी बुझि परछ आ गोटे मजा जिनिस काना कि इजेन सिंगल सॉरी इजेन गोल्ड फॉइल अच्छे दैट मस्ट बी सिंगल लेयर बुझि परछ एटा वेरी थिन जार थिकनेस की लगभग 10 टू द पावर -6 मीटर रु 10 टू द पावर -8 मीटर रहउछि आ हमें ई गोल्ड फॉइल के एंता नोछु ना कि मतलब गोटे एबे देखो तोर पा गोटे एप्पल अछि ओके एप्पल के किते पतला काटी पारुछ इते पतला काटबो कि एबे जदी इटा तमे कहबो कि मु देखेबी गोटे लाइन रे इटा गोल्ड फॉइल जदी हला बेले गोटे गोटे एटम रहउछनी लोग बुझि परछ कि नहीं एंता काटी जे तमर गोल्ड फॉइल कि जेंता कि गोटे गोटे एटम मतलब ई जेन स्लाइड अछि ई जेन फॉइल अछि लो गोटे गोटे एटम अछन खाली गोटे गोटे एटम अछि बुझि परछ जेंता कि आसी कि ना पीटी हला परे एटलीस्ट किछि इफेक्ट हमें जानि पारमा बुझि पारछ सो द गोल्ड फॉइल दैट आई एम टेकिंग इज सिंगल लेयर्ड गोल्ड फॉइल मतलब गुटे लेयर रे गोल्ड फॉइल अरेंज हेछि ओके बुझि पारलो एबे ई टोटल जिनिस के आउ थरे में तमके कहि देछ मोर पाके अल्फा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल अछि जिन जगह के अल्फा पार्टिकल बाहर अछि अल्फा पार्टिकल के मुई लीड बॉक्स रे रखि जेंता कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेडिएशन कैन बी एब्जॉर्ब बाय द लीड बॉक्स आ सब अल्फा पार्टिकल माने इयाडे का बाहर बे टुवर्ड्स राइट तापरे जेहेतु अल्फा पार्टिकल पाके बहुत सारा एनर्जी अछि दैट इज लगभग 5 टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट तो से माने स्कैटर्ड होबा के ट्राई करबे इयाडे सेडे जीवा के ट्राई करबे तो सेति लागि मैं काना कहली लीड ब्रिक्स नेली जेंता कि सब अल्फा पार्टिकल के गोटे डायरेक्शन में मूवमेंट करि पारबे तो लीड ब्रिक्स रो काम काना इट कोलिमेट्स द अल्फा पार्टिकल इन ए सिंगल डायरेक्शन तो गोटे डायरेक्शन में मूवमेंट करबा के से हेल्प करबा आउ गोटे डायरेक्शन में जाई कि ना कार संगे पिटी हबा गोल्ड फॉइल संगे द गोल्ड फॉइल दैट आई एम टेकिंग इज वेरी थिन एबे तुमको नेक्स्ट स्लाइड तुम जानि पारबो कि व्हाई गोल्ड फॉइल विल डिस्कस अबाउट इट तो एबे देखो एतकी जानो कि जिन अल्फा पार्टिकल अछि से गोल्ड फॉइल संगे जाई कि ना पिटी होछि एंड दैट गोल्ड फॉइल इज वेरी थिन लगभग 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -8 मीटर थिकनेस अछि आ गोटे गोटे लेयर देखि पारुछ ना गोटे गोटे एटम अरेंज होछि से लोग एंता हिसाब से काटी जे ओके तापरे कितरा अल्फा पार्टिकल पूरा सीधा सीधा जाई कि ना पिटी हला मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पूरा सीधा सीधा गला और जिंक सल्फाइड स्क्रीन रे पिटी हेले जेहेतु जिंक सल्फाइड ता फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी शो करूचे तो इले गोटे स्पॉट क्रिएट हे गला आ इस स्पॉट में केंदार जानि पारुचे डिटेक्टर या फिर कोइ पारबो कि माइक्रोस्कोप ओके माइक्रोस्कोप रो जानि पारुचे तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ओके आई होप किछि डाउट नै ना जदी किछि डाउट अछि कमेंट करबो plus if you have any doubt you do have my number तो इतरे टेक्स्ट करि पारबो this is all about the experimental setup right now we'll move to the next slide that is why do we need gold foil तो मैं जानि छ हमें जानि छु फिर भी कहि दउ जे एटा डिस्कशन के करा हितला ना रीजन काना we know that gold is malleable right gold is malleable रो मीनिंग काना कि आमे जदी गोल्ड एटम के नेमो पिट मु तो आमे ताके गोटे थिन शीट बने पारमा तापर गोटे थिन वायर बने पारमा बुझि पारुछ मेलेबल मतलब
मतलब यू कैन मेक अ गोल्ड टू गोल्ड सीट जेते भी तुम ताके पतला करि पारबो यस सर नो तो जेते हमें पतला करि पारमु ता एटम्स मानकर अरेंजमेंट सेंता ही पारबा मतलब गोटे लेयर रे ही पारबा आ गोटे लेयर रे ही पारबा बेले हमर लागि सुविधा कि अल्फा पार्टिकल जदी तार संग पीटी हैला बेले हम जानि पारमा कि काना होउछ एक्चुअली से जगह तो दैट इज द मोस्ट यू कैन से कि गोटे रीजन as the gold is malleable जाके हमें कि पिटमु बेले गोटे थिन शीट बने पारमा we can make a thin sheet we can make a thin sheet एटा गोटे पहला रीजन हाउ गोटे सेकंड रीजन काना गोल्ड इज ए हेवी एटम तुम जानि छ इधर एटॉमिक नंबर केते 73 तो इट इज अ हेवी एटम तो दैट इज आल्सो a reason why we are taking the gold foil बुझी पारुछ अगेन सेम एक्सपेरिमेंट देखो एटा ला सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब इट थ्रू अल्फा पार्टिकल बाहर छी अगेन इट इज अ लीड बॉक्स हो कि नहीं लीड बॉक्स थिला अल्फा पार्टिकल बाहरला देखो आउ जेन मुई कहिथिली सेमी सर्कुलर नहीं सेटा पूरा सर्कुलर इटा जिंक सल्फाइड स्किन है सर्कुलर एका अछि देखि पारुछ जाई कि ना अल्फा पार्टिकल संग पीटी होची जेटा कि थिन फॉइल्ड अल्फा पार्टिकल ई जगह अल्फा पार्टिकल पूरा स्ट्रेट जीवा के ट्राई करूची ओके बढ़िया तो दिस इज द बेसिक टू रीजन व्हाई वी आर टेकिंग द गोल्ड फॉइल ओके चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ओके दिस इज द अगेन बुक रो गोटे बुक रो जहां मुई तुमके बुझी थिली अगेन सी खाली आउ थरे कहि दोचे जेंदा कि तुम मानकर क्लियर रहबा कांसेप्ट सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ओके ई अगर लीड बॉक्स अछि नो डाउट तापर लीड ब्रिक्स अछि लीड ब्रिक्स काना करूची ऑल द अल्फा पार्टिकल्स आर right now moving in a single direction beam of alpha particle से जाई कि ना thin gold foil संग पीटी होची कितरा अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा पळोचन जाई कि ना पीटी होचन स्मॉल एंगल स्कैटरिंग कितरा अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा पळेले कितरा स्कैटर्ड हेचन जाई कि ना तमर काम काना जिंक सल्फाइड स्क्रीन रे पीटी तो हेचन तापर हमर माइक्रोस्कोप अछि जेंटा कि हमर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कितरा अल्फा पार्टिकल ना बैक स्कैटर्ड भी ही जाउछन देखि पारुछ बैक स्कैटरिंग ऑफ ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन मतलब जदि 8000 टा अल्फा पार्टिकल एंती जाउचन तो चांसेस ऑफ जिनटा अल्फा पार्टिकल पछ के आवर चांस होचे दैट इज 1 मतलब गोटे 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल इज कमिंग बैकवर्ड ओके ठीक अछि नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन काना ऑब्जर्वेशन हला वेल इट इज वेरी इजी देखो बुझो इज इन थीटा अछि दैट इज स्कैटरिंग एंगल ना थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल बुझी पारुछ ना जेंटा एंता थिला एबे जदि एटा हमर गोल्ड फॉइल थिला एंता अल्फा पार्टिकल आउथिला याडे जाउ जीवा कथा याडे आसुछ दिस इज थीटा ओके मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड मतलब is in theta equal to less than 1 degree बुझो तो इतकी पूरा पाखापाखी मतलब तमर जदि 100 टा अल्फा पार्टिकल पकोछ तो 99 टा अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड कि ना सीधा डायरेक्ट पास करि गेल डायरेक्ट पास सीधा पास करि गेले ओके नो डाउट हमें जानि गलो प्रॉब्लम किछि नै ना तो तापरे ओनली 0.14% ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएटेड मोर देन 1 डिग्री मतलब इज एन एंता आसबा कथा 1 डिग्री एतकी रे डेविएट करिचन केतेटा 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल तुम एबे बुझो खाली दिस इज ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सपेरिमेंट करला परे हमके काना मिलला काना ऑब्जर्व कलु हमें काना देखा जाउची हमें जदी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जेंटा अछि अनडेविएटेड हे गला मतलब किछि मतलब का बोलबो किछि स्कैटरिंग नै देखे तार मीनिंग हला गोल्ड जेंटा अछि गोल्ड फॉइल थिला मतलब गोल्ड एबे जदी देखो याडे थिला हमर गोल्ड जदी एंता असला एंता पळेला तार मीनिंग काना इ लोग होलो स्पेस अछि हेदिले तो आराम से पळेला बुझी पारुछ सेटा का हमर कंडक्ट मतलब कंक्लूजन हमें दमा तो एबे देखो 99% 99.86 अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड हे गले ओनली 0.14% टा स्कैटरिंग देखेले तापर काना हला जदी 8000 टा अल्फा पार्टिकल अछि तो गोटे अल्फा पार्टिकल काना हला 90 डिग्री मतलब एटा जदी एंता 90 डिग्री तो इयाडे भी पळे आसबा के ट्राई करला जेंदा कि मैं कहली 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल came back to the same path या फिर कोई पाबो कि 90 डिग्री रो अधिक से माने स्कैटरिंग देखेले ओके तापरे 1 in 10 lakhs मतलब 1 मिलियन जदी 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल तुम पठौछ तो पार्टिकल्स गोटे पार्टिकल का पूरा ए देखो बुझो छ तुमके एटा मजा जिनिस टिके बुझी जाओ
एबे जदि ओ एबे जदि मुई कहबी कि एंता अल्फा पार्टिकल आसुथिला ओके आमे जानिछु अल्फा अल्फा पार्टिकल रो चार्ज मास तो जानिछो ना हां नहीं 4 एमयू कहिथिले गोटे प्रॉब्लम रे आमे करिथुनी सब जिनिस माने हला मास हला 4 एमयू ठीक अछि और 2 अल्फा 2e जानिछो ना सेटा तो अल्फा पार्टिकल जेंटा अछि दैट इज पॉजिटिव 2e बुझि पारछो जिन अल्फा पार्टिकल जाउची सेटा पळे आछे पर सेम 180 डिग्री रे तो इतार मास हला 4 एमयू एक्सप्लेन करि देछो नो डाउट तो ता माने एबे जदि गोटे अल्फा पार्टिकल जाउची दैट इज पॉजिटिव चार्ज आउ इट इज रिटर्निंग बैक टू द सेम पाथ बुझो जिनिस 1 आउट ऑफ 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल जे कि 180 डिग्री रे बैक करूचे मतलब जेन डायरेक्शन रे जनता जाईचे हंता का पळे आसु तार मीनिंग काना गारंटी इलो कि छोटे पॉजिटिव चार्ज अछि बुझि पारछो जदि पॉजिटिव चार्ज नहीं थिता तो इता रिपेल नहीं करता ना तो इयाडे आस्ता बेले इयाडे पळेता जेहेतु पॉजिटिव चार्ज जोटे अछि तो इता के रिपेल करूची पर इतार ना का हम देथिनो न्यूक्लियस जेना के आके पड़मा नो डाउट ओके ओके देखो आगरु कहि दोचे ई जेन डाटा माने अछि 99% ओटा एटा एटा के मने रखबार किछि दरकार नहीं ना मने रखबार किछि दरकार नहीं ना मॉडर्न फिजिक्स रे बहुत सारा डाटा आसबा जेनटा की इंपोर्टेंट नहीं से हला क्वेश्चन से जगह रो नहीं आसे खाली इतकी जानो काना ऑब्जर्व करा गला हला चलो नेक्स्ट स्लाइड तुमके गोटे ग्राफ देखोचे जेन जगह जानि पारबो कि तार मीनिंग काना एबे देखो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एंगल जेते बेले 0 रु देखो 0 रु 1 डिग्री से जगह मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल काने दिले बुझि पारछ धीरे धीरे कमी आउछ आई मीन टू से कि जेते एबे देख इलो जेते अल्फा पार्टिकल पेबू तो धीरे धीरे बड़ो चुना स्कैटरिंग एंगल तो पार्टिकल टा काने जिवे कमी जिवे एटा धीरे धीरे कमी कमी आइछ देखो मतलब 0 रु 1 डिग्री नंबर ऑफ पार्टिकल 10 टू पावर 7 अछि मैक्सिमम अछि बुझि पारछ तो जेते बेले तुम स्कैटरिंग एंगल टा बड़ी आसबा तो नंबर ऑफ पार्टिकल और यू कैन से कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल दैट इज धीरे धीरे कमी कमी आसबा आउट ऑफ 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल ओनली 100 वेर डिफ्लेक्टेड एंगल मोर देन 160 डिग्री एटा अगेन डाटा नॉट नीडेड खाली लिखाई जेछि गोटे ओके एनी प्रॉब्लम n एटा n दैट इज नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल ओके एक्चुअली काना है कि तमर गोटे फार्मूला अछि ला नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंड थीटा बुझि पारुछ मतलब मुई जदी थीटा एबे जदी एंता अछि बाबू थीटा के मुई जदी केते करबी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल केते हवा जदी थीटा इक्वल टू 50 डिग्री हला तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल केते हवा गोटे फार्मूला अछि जेना कि तुमके जानबा के पड़वा हला तार किछि एबर लागि तमर प्रूफ दरकार नहीं ना चलो नेक्स्ट स्लाइड अछि सेटा देखो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एंगल गोटे फार्मूला अछि जेना कि तुमके जानबा के पड़वा तो दैट इज n इक्वल टू k z square by sin to the power 4 theta by 2 ओके जानबा के पड़बा एटा इट दिस इज नॉट एक्यूरेट फार्मूला बट एटा तमर दरकार है जानबा के पड़बा एटा दिस इज अप्रोक्सीमेट फार्मूला अप्रोक्सीमेट हला k बेले काना कांस्टेंट है k is a constant काई गला k is a constant for a material or a given foil you can say कि material given foil से given थिबा चिंता नहीं करो तापरे z बेले काना z बेले जानि छ तमे एटॉमिक नंबर यस और नो यस थीटा बेले काना स्कैटरिंग एंगल केनता प्रॉब्लम ऐसे मैं कहि देबी खाली फार्मूला मन रखवा पड़बा स्कैटरिंग काना एंगल एंड n बेले काना n बेले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा यस और नो जेंटा हम लिखि छु नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बुझि पारुछ फार्मूला तुमके मन रखबा पड़बा कि नंबर ऑफ जदी थीटा में बढ़े देबी बेले नंबर ऑफ स्कैट नॉर्मल जिनिस है हला तुम जदी फील करबो बेले एटा जदी इलो अल्फा पार्टिकल मिलुथिला तो मुई जदी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री कर देबी तो से सेम एटम जदी देइछि बेले के तुमके देइथिबा z देइथिबा थीटा देइछि n नहीं काटी पारबो कि फार्मूला मन रखो कि k z² by sin 4 थीटा by 2 हला ओके एटा लिखि दबो चलो प्रॉब्लम करो केनता प्रॉब्लम एक्चुअली आसुछि देखो केनता प्रॉब्लम आसबा इफ 1000 अल्फा पार्टिकल्स आर देयर डिफ्लेक्टेड एट 60 डिग्री मतलब थीटा दे दीजिए नहीं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हाँ दादा अच्छी हमें 8:30 तक आएंगे
हाय कहाँ लगी नहीं ना बोलते लगी नहीं हाँ ठीक है दादा ठीक अच्छे देख सॉरी फॉर द कॉल हैड टू रिसीव काना करथिलु यस जदि तुम पाखे इफ 1000 alpha particle deflects at 60 degree find the number of alpha particle that deflects at 90 degree अच्छा 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 नाइस 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 ए दुईटा जिनिस दे दीची नॉर्मल है जदि 60 डिग्री रे if 1000 alpha particle deflects at 60 degree find the number of alpha particle that deflects at 90 degree मतलब n दे दीची नहीं से कि चलो ठीक अच्छे एबे देखो आमे फॉर्मूला जानी छु नो डाउट एबे देखो सेम जिनिस है k और z टा तो कांस्टेंट ही जीवा काजे कि मटेरियल सेम है हां कि नहीं तो मुई कोई परबी n इज चलो n1 केते देछि n1 इक्वल टू 1000 से n2 मांगी छी ओके थीटा भी दे दीजिए केते 90 डिग्री थीटा थीटा 1 दे दे एटा थीटा 2 दे दिया सरला आउ काना करबता किछि दरकार नहीं आमे जानि छु फार्मूला कहिछि कि टोटल n इक्वल टू केते k z² बाय sin 4 थीटा बाय 2 नहीं से के तो मैं कोई परबी कि n1 n या फिर कोई पर डायरेक्ट k और z तो कांस्टेंट ना तो n इज प्रोपोर्शनल टू केते 1 बाय sin 4 थीटा बाय 2 ती जगह 1 पके देली इ लगो 1 ही गला सिमिलरली n2 इज प्रोपोर्शनल टू केते है 1 बाय sin 4 थीटा बाय 2 सरला एटा इक्वेशन 1 दे दे एटा इक्वेशन 2 दे दे तो मैं लिख ली 2 डिवाइड बाय 1 तो n2 बाय n1 इक्वल टू केते हे जेबा sin 4 थीटा 1 बाय 2 बाय sin 4 थीटा 2 बाय 2 सिंपल तो इम्प्लाइज n2 मांगी छे ओके n2 बाय केते 1000 इक्वल टू sin 4 थीटा 1 केते 60 बाय 2 केते 60 बाय 2 30 डिग्री बाय sin 4 थीटा 2 केते 90 बाय 2 45 डिग्री ठीक अछि इम्प्लाइज n2 इक्वल टू 1000 तने पर नहीं जाए तो 1000 इनटू sin 30 रो वैल्यू केते 1 बाय 2 तो केतेटा अछि चारटा अछि तो 1 बाय 2 इनटू 1 बाय 2 इनटू 1 बाय 2 इनटू 1 बाय 2 खत्म sin 45 रो वैल्यू केते 1 बाय √2 into 1 by root 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2 1 by root 2 into 1 by root 2 1 by 2 तो गोटे कटि गला अगेन 1 by root 2 1 by root 2 गोटे कटि गला तो 1 by 4 तो ही गला 1000 into 1 by 4 बोले केते 4 दूने 8 2 250 नहीं करि पारबो कि बहुत इजी है 250 गारंटी ऑप्शन रे थिबा 250 अछि कि नहीं अच्छी ऑप्शन डी इज करेक्ट बुझी पारुछ बुझी पारलो कि नहीं सिंपल फार्मूला खाली रिलेशन देखबा अछि कार संगे डिपेंडेंस अछि बिकॉज़ यू आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल सो k और z रो वैल्यू भी चेंज नहीं हो तो एति लगे मी ताके फोकस एका नहीं करी जदी भी करबो बोले kz² कटि जीवा हां कि नहीं तो प्रोपोर्शनलिटी तो हमें बुझी सरलो ना तो सही हिसाब से काम करो हला आई होप बुझी पारलो चलो नेक्स्ट Rutherford nuclear model of atom okay ठीक अछि कान एक्चुअली ऑब्जर्व होते since most of the alpha particle passes undeviated most of the atom is empty space तो atom is a hollow inside मैं कहली जदी सब alpha particle माने तेने पर पळौछ without any effect किछि इफेक्ट भी नहीं ना तो आराम से सेमन के अपोज करबा के एटम र भीतर किछि नहीं थाई बुझि पारुछ तार मीनिंग काना एटम इज ए होलो स्पेस तो एक नंबर पॉइंट क्लियर अछि आई थिंक हला इट इज इन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्या आज कह गला कि रदरफोर्ड एक्चुअली बोर जेंटा थिले न्यूक्लियस विषय रे किछि इंफॉर्मेशन देई थिले नो डाउट बट रदरफोर्ड का जिन फर्स्ट पर्सन थिले जे कि न्यूक्लियस विषय रे किछि आईडिया देई थिले
ओके तो रदरफोर्ड एक न्यूक्लियर डिस्कवर करथिला आई मीन टू से तापर सेकंड पॉइंट देखो some alpha particle deflects more than 1 degree जेन 0.14% of the alpha particle थिला से बने 1 डिग्री रु अधिका 1 degree less than 1 degree or by more than 1 degree deflection देखेले this means that there is a positive charge inside atom जे की बनके रिपेल करा कोई पार so this positive charge is concentrated in an extremely small space inside the atom which is called nucleus मैं कहली कि जदि alpha particle आसुचन याडे ओके जदि alpha particle याडे आसुचन आ गोल्ड फॉइल रे आराम सब पास करी गले नो डाउट बट किछिटा तो डिफ्लेक्ट देखेली ना तो जदि गुटे alpha particle याडे आला भाव आ एंता डिफ्लेक्ट देखेला तार मीनिंग काना इला जदि पॉजिटिव चार्ज गुटे अछि तो इटा पॉजिटिव चार्ज है तो इताके रिपेल करबा ना तो याडे गला बुझ पारछो कि नहीं तो गारंटी किछि गुटे पॉजिटिव चार्ज हला एटम रो पूरा मझी रे कंसंट्रेट हेगी ना अछि आ दिस इज वेरी स्मॉल मतलब तमे जदि कहबो कि मोर रूम जदि इटा मोर रूम अछि जदि मोर रूम एटम है तो आमर जेन पिन रो नीडल इज द न्यूक्लियस बेले बुझी पारछो केते होलो स्पेस अछि बुझी पारछो एटा मोर जदि रूम हला कि तमर रूम हला तो पिन रो नीडल इज द न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस रो मास नो डाउट कंसंट्रेट बहुत हेवी थिसी ता डेंसिटी बहुत अधिक थिसी हमें पढमु सेटा हला किंतु आमर जेन रूम रो केते रूम रे जदि गोटे एटम हला तो जेन नीडल इज विल बी एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियस बेले बुझी पारछो तो टोटल होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड से जगह रे कंसंट्रेटेड थिसी तो हेरा हला पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम जाके हमें कहैसो न्यूक्लियस ओके कैलकुलेशन शोज दैट the size of the nucleus is 10 to the power minus 15 में देखो कितने छोट और एटम रो 10 to the power minus 10 बुझ पारुछो that is very less okay चलो next point की हेड 3 number for foils of different element the number of alpha particle deflected at an angle theta are different ऑब्वियसली देखो तुम जदि मेटल चेंज कर दबो तो मेटल रो कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हिजिबा ना आमे देखो से बोलछि जे तुम जदि मेटल चेंज कर दबो तो नंबर ऑफ जेन अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होछि सेटा चेंज हिजिबा एटा तो नॉर्मल जिनिस है आमे एबे जस्ट फार्मूला उठ पढलो कि n = kz² / sin 4 θ/ 2 तो z संगे डिपेंड नहीं करबार कि n इज प्रोपोर्शनल टू z² बोले बुझुछो तुमर जदि जेते हेवी एटम नेबो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़वा ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जदि बढ़वा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन भी बढ़वा बुझि पारुछ सिंपल देखो हम एटा पढिछु बोली कि हम आराम से कहि देनु कि जदि z बढ़वा तो n भी बढ़वा z बढ़वार मीनिंग काना मेटल चेंज हला बुझि पारुछ तो जदि हम गोटे मेटल चेंज करबी z चेंज करबी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा विल बी गेट चेंज्ड ओके एटा टिकिटा लिखि सारला पर ई फार्मूला टिक लिखि दबो तापर 4 नंबर पॉइंट the electrons are attracted by the nucleus normal जिनिस है इलेक्ट्रॉन एंता जदि जाउची हला electrons are attracted by the nucleus due to electrostatic force अच्छा the electrons are attracted by the nucleus due to electrostatic force but are not pulled towards it they are constantly revolving in a circular path अच्छा ठीक है ये मैं बुझे दिस देखो नेक्स्ट स्लाइड के जो जानि पारो मैं कहबा काना चाहू ठीक बुझो से या फिर से काना कहबा चाहू एबे देखो ई लोग न्यूक्लियस थिला ओके ई काना बोलछि कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जे इलेक्ट्रॉन अछि एटा इलेक्ट्रॉन्स ई लोग नो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो एबे देखो एटा जदि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इज व्हिच चार्ज नेगेटिव चार्ज आउ एटा हला पॉजिटिव चार्ज तो ई काना करबा कथा टाणी किना रखबा कथा टाणवा कथा बाय द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe ओके तो जदि ई टाणी दबा बेल तो प्रॉब्लम है एंता तो नहीं हबा एंता होची की एंता तो नहीं हबार ना बुझि पारछो कि नहीं एमती नहीं हबार बहुत अच्छी ठीक अच्छे देखो तो इलेक्ट्रॉन्स इयाडे तो नहीं आसबार ना तो तामाने से गोटे पॉइंट गला देखो कि द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेटा के हम काढी भी पारमा कहबो बोले काढी भी देबी मु काढी दो चरो
इन इलेक्ट्रोस्टिन अच्छा इलेक्ट्रॉन चार्ज केते ई आ इतारटा चार्ज केते जेड ई बिकॉज जेड टा थिसन ना जेड इज द एटॉमिक नंबर जेते एटॉमिक नंबर सेतिटा इलेक्ट्रॉन तो इतार जेड ई इतार ई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केते हिजिबा एफ ई इक्वल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर यदि डिस्टेंस r एका नेबी तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 केते e into z e by r स्क्वायर तो implies इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केते पाई गलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर by r स्क्वायर तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेन तरी कि इलेक्ट्रॉन हला सॉरी न्यूक्लियस ताके टाणी किना रखिछि ओके ओके नो प्रॉब्लम तो किंतु से कहला कि इलेक्ट्रॉन टा सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुछि तो ता माने मने पको जदि गुटे पार्टिकल टा सर्कुलर ऑर्बिट रे जदि मोशन करबा की चाहूछि तो तार पाके आ गुटे फोर्स थिसी पड़े थिली मने पको सेंट्रीपिटल फोर्स मने अछि कि नहीं फर्स्ट ईयर पढ़ी थिलो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज कॉल्ड fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाय काना r बुझि पारुछ तो जदि ई इलेक्ट्रॉन टा सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुछि जदि सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुछि तो इधर अपोजिट डायरेक्शन आ गुटे फोर्स लागुछि बुझि पारुछ तो दैट इज कॉल्ड सेंट्री नो डाउट सेंट्रीपिटल फोर्स है बट आमे जेहेतु सीडो फोर्स कंसीडर करसु एटा के आमे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलसु पढे थिली मने अछि जदि मने नै ना चैनल रे अछि वीडियो देखि दबो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुझि पारुछ तो जदि इलेक्ट्रॉन टा बैलेंस अछि बिकॉज़ इयाडे भी नै आबार कि सियाडे भी नै आबार तो ई दुइटा फोर्स काना हेबे इक्वल हबार अछि तो करि दियो एटा इक्वेशन 1 एटा इक्वेशन 2 इक्वेट करि दियो तो mv स्क्वायर बाय r इक्वल केते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर बाय r बुझि पारुछ कि नै बुझि पारुछ तो ई जिनिसटा परे हमके बोर डिटेल्स रे एक्सप्लेनेशन करिका देइथिले जेंटा कि हमें कर्मा नेक्स्ट फर्दर स्टडी रे तो हम एतकी जानो कि इलेक्ट्रॉन लगी जेहेतु इलेक्ट्रॉन टा सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुची से कहला तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेति लगे एका से सर्कुलर ऑर्बिट रे बुली पारुची ओके सेटा के से पॉइंट थिला जदी देखबा के चाहू औथर देखि पारबो द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट आर नॉट पुल्ड टुवर्ड्स इट से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आने नहीं आबा दे आर कांस्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ using the electrostatic force as centripetal force बुझलो से जिनिस का अछि चलो नेक्स्ट रे देखो नेक्स्ट देखो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जेंतिरो क्वेश्चन पचारसी एतकी पदे जहा पढलो एंट्रेंस से क्वेश्चन नै पचारे एबे जिन क्वेश्चन जिन टॉपिक आसबा सेतिरो क्वेश्चन टिके आइसी ओके तो दिस इज इंपोर्टेंट यू कैन से ओके न्यूक्लियस साइज डिटरमिनेशन मतलब न्यूक्लियस रो साइज केंदार जानि पारबो ओके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तार मीनिंग काना टिके बुझो जदी लोग में गोटे न्यूक्लियस नेली ओके मोर पाखे अल्फा पार्टिकल अछि तो अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज नो डाउट जानिछो हमें तो ई जदी जाउची ई जदी एमती जाउची ई जदी एमती जाउची हला तो ई इटा भी तो पॉजिटिव चार्ज ना बुझि पारुछ तो पूरा पाखे तो जाई नहीं पारे तो गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस एला परे इता के अपोज करी बसबा बुझि पारुछ नो डाउट कि अल्फा पार्टिकल्स रो काइनेटिक एनर्जी अछि बुझो ए जिनिस तो धीरे धीरे ई जिन पॉजिटिव चार्ज ताके अपोज करूची तो इतार काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होची काना पोटेंशियल एनर्जी के नहीं तो बोले कि पारबी काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एतकी तो हम जानी छु बुझि पारछो कि नहीं पहला देखो अल्फा पार्टिकल तार का किछि गुड काइनेटिक एनर्जी थिला जोर से जीवा के ट्राई करूथिला तो पूरा तो इतार पाके जाई नहीं पारे ना बिकॉज़ हमें जानी छु गुटे पॉइंट आसपास जिन जागरी अल्फा पार्टिकल काना हिजबा स्टॉप हिजो रही जिबा ऑब्वियसली रही जिबा बिकॉज़ इटा पॉजिटिव चार्ज है ताके अपोज का करबा तो जिन मैक्सिमम जिन डिस्टेंस जिते पाके जाई पारुची से जिन डिस्टेंस रही गला दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिते पाके जाउची अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस तो r नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब किते से पाके जाई पारुची ओके बुझि पारुछ हो कि नहीं आ वो पोटेंशियल नॉर्मल जिनिस है काइनेटिक एनर्जी तार पाके थिला तो जदी ई लोग रही जिबा तो पोटेंशियल एनर्जी के कन्वर्ट हो जाउची तो ई लोग तुम जदी एनर्जी कंजर्वेशन लगे दबो फट कि आंसर बारी जिबा बुझि पारुछ एनर्जी कंजर्वेशन मीनिंग काना एबे देखो मु बतौ छ
काइनेटिक मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टोटल एनर्जी फाइनल, तो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली चलो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। देखो आराम से करि पारमा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली काना थिला के ई एका थिला, चलो लिखि दो काइनेटिक एनर्जी प्लस जदि गोटे पार्टिकल मोशन रे अछि पोटेंशियल एनर्जी अछि ताकि नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली केते थिला 0। तापरे जेते भी इलोका आसला काइनेटिक एनर्जी रही गला स्टॉप ही गला, तो काइनेटिक एनर्जी कान सॉरी अल्फा पार्टिकल स्टॉप ही गला, तो काइनेटिक एनर्जी रो केते ही गला फाइनल 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बुझी पारुछ? तो इंप्लाइज में लिखि पारबी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला केते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर नहीं से r जानि छो ना हो कि नहीं, आई होप जानी थिबो। तो सिमिलरली अल्फा पार्टिकल रो चार्ज केते 2e आ इताटा केते प्लस ze, तो इता हला Q1 एटा हला Q2, तो टिके डिटेल्स लगी दो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into z square by r। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हाट इलेक्ट्रॉन। बुझी पारुछ? आ जिन डिस्टेंस अछि ई जिन z स्क्वायर लिखि देलो ना एटा काना r नॉट ना, बुझी पारुछ कि नहीं, एटा r नॉट। तो ई जगह r नॉट तमे काटी पारबो इंप्लाइज r नॉट इयाड धरि आनली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी एटा हमर जिनिस। ई r नॉट रो वैल्यू हला काना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब जिन जगह रे की टोटल इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन से बोलछे तोर जिन अल्फा पार्टिकल थिला दैट इज द मैक्सिमम पाके बहुत बहुत पाके तो जाई नहीं पारे, जेते पाके जाई पारबा से जगह रो न्यूक्लियस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर? बुझी पारलो कि नहीं? आई होप बुझी पारथिबो। चलो नेक्स्ट की देखो। यू हैव कंप्लीटेड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, मतलब किते पाके गुटे अल्फा पार्टिकल टा जाई पारुछि कार पाके न्यूक्लियस रो पाके। ओके, एंड अ स्मॉल पॉइंट इज दैट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गिव्स द आइडिया अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तुम निजे का भाबो कि चलो साइज ऑफ द व्हाट साइज ऑफ द न्यूक्लियस एबे जे अल्फा पार्टिकल लग थिला बाबा ना अल्फा पार्टिकल सो से जाउची टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इटा अपोज करूची, तो ऑल द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी। और जिन टाइम रे की अल्फा पार्टिकल टा रेस्ट रहउची से जगह रो न्यूक्लियस रो डिस्टेंस हमें r नॉट नोथिलु आ ताके कोथिलु डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो निजे भाबो साइज ऑफ द न्यूक्लियस जिनटा अछि इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। निजे की सब बेले क्लोजेस्ट अप्रोच तो अधिका करबा ना, दिस इज स्मॉल पॉइंट जेना कि तुमके ठीक मन रखबा के पड़बा। या फिर कोई पारबो कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस लेस देन r नॉट हटा दो ना। ओके चलो ठीक अछि, नेक्स्ट के खाटो। नेक्स्ट पॉइंट साइज ऑफ द न्यूक्लियस। चलो जानो एक्चुअली हमें केने काडी पारुथियो साइज ऑफ द न्यूक्लियस। एबे जस्ट कि आगर मु तुमको फार्मूला देथिली r नॉट रो कि r नॉट इक्वल टू थिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेट करिकना पाइथिलु 2 into z स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। माने अछि यस और नो? सो दिस इज द बेसिक थिंग। एबे देखो आमे जानिछु कि मोस्ट एनर्जेटिक नेचुरली ऑब्टेन्ड अल्फा पार्टिकल रो एनर्जी जेंटा काइनेटिक एनर्जी हमें कहूछु बिकॉज़ मोशन रे अछि 7.7 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। तुम जदि इलेक्ट्रिक वोल्ट की जूल रे करबा के चाहू तो 1.6 into 10 to the power minus 19 मल्टीप्लाई कर दबो डायरेक्ट से जूल रे कन्वर्ट हो जिबा। ओके एबे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो वैल्यू जानिचो, 2 रो कांस्टेंट z फॉर द गोल्ड इज 79 जानिचो, सेटा भी z इक्वल टू 79 सेटा भी लिखि दी आई थिंक यस। तापर e रो भी जानिचो दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19। तापर काइनेटिक एनर्जी भी तोमा वैल्यू दिया हिची, तो ई सब रो वैल्यू तुमके पुट कला परे r नॉट रो वैल्यू हला लगभग बाहरला 30 फेम्टोमीटर और फर्मीमीटर। तो इंप्लाइज r नॉट इक्वल टू 30 into 10 to the power minus 15 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब एतकी पाके बुझी पारछो गोटे अल्फा पार्टिकल टा एतकी पाके से जाई पारुची। अब हमें एक्सपेरिमेंटली गोटे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करनु
से जगह रे आम साइज ऑफ द न्यूक्लियस आमके मिलला 6 FM पर मीटर बुझी पारुछ देखि पारुछ कि नहीं देखि पारुछ कि नहीं एबे जस्ट टिके आगर जानिथिलो कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन आर नॉट देखो साइज ऑफ द न्यूक्लियस केते 6 पर मीटर आर नॉट केते 30 FM तो 6 इज लेस देन 30 ना बुझी पारुछ कि नहीं बिकॉज़ आमे जानबा के पाउछु कि अल्फा पार्टिकल जाउचे यस और नो से न्यूक्लियस ताका अपोज करूचे आ आमे तापरे आर नॉट बाहर करथिलु तो दूरे काटी के थिला ना yes or no तो always size of the nucleus is less than the distance of closest approach I hope concept टा बहुत clear जाइथिबा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देला पर हमके एतकी बाहरला किंतु एक्सपेरिमेंटली 6 फेम्टोमीटर थिला ता माने अल्फा पार्टिकल टा पूरा तार पदे खेटी नहीं पारबा अल्फा पार्टिकल के तार न्यूक्लियस टा अपोज करूची ओके वेरी गुड नेक्स्ट चलो next I think problem alpha particle of mass m moving with a velocity b okay alpha particle गोटे थिला जार mass थिला m से जाई कि ना पीटी होची कार संगे गोटे हेवी न्यूक्लियस संगे ओके हेवी न्यूक्लियस संगे पीटी होची ऑफ चार्ज zd ओके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मांगी छी अरे यार पुट द फार्मूला गेट द आंसर यस और नो चलो से m संगे रिलेशन का मांगी छी यस और नो डायरेक्ट कथा है r नॉट रो वैल्यू केते पाइछो r naught equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 into z square by kinetic energy नहीं से कि एबे देखो एटा q1 q2 इता केते 2e इताटा केते z मल्टीप्लाई कर दो q1 q2 केते 2z स्क्वायर नहीं से के बाय काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला ही मु जानि छ 1 by 4 pi epsilon naught इटा इक्वल 2z स्क्वायर by half m v स्क्वायर तो m तळे अछि ना तो r naught is inversely proportional to m मतलब से बोलছে डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टा m संगे डिपेंडेंट केनता अछि जे m टा जेते हेवी हबा r टा सेते कम हबा तो निजे का भाबो जार मास जेते अधिका हबा बुझि पारुछ जार मास जेते अधिका हबा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टा सेते कमी जिबा हो कि नहीं चलो एटा ऑप्शन थिबा आई थिंक बाध्य अछि 1 बाय m खत्म एटा भी देखुछ 2016 रे पढिछि हां 2016 रे पढिछि हला वेरी इजी अगेन 2010 रे पढ़ी सेम क्वेश्चन गोटे अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर अछि है ना एंड अगेन से समान एका गोटे हेवी न्यूक्लियस zd संगे पेटी होछि तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज प्रोपोर्शनल टू अगेन हमें जानि छु एटा केते हबा 1 बाय m एका हबा सेम क्वेश्चन बिकॉज़ वी नो r नॉट इक्वल टू केते पोटेंशियल एनर्जी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 केते 2e q2 केते zd काइनेटिक एनर्जी केते हाफ m v स्क्वायर तळे एका m अछि और बाकी v स्क्वायर संगे देखो प्रोपोर्शन v स्क्वायर भी इलोटो जिनि जानबा मिलु छै कि r नॉट इज प्रोपोर्शनल टू z ऊपरे अछि ओके r नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m आउट जानबा मिलु छै r नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v स्क्वायर लास्ट टाइम इटा पढी छै m पढी छै तो इथरो m z भी पढी पारे बुझि पारुछ तो टिके ई जगह रे टिके ध्यान दबो जदी फार्मूला तुम जानि छ तो फट के ना कर दे पारबो फार्मूला रे का खेल अछि ओके चलो नेक्स्ट के खेटो हेबे बड़ा क्वेश्चन गोटे इन ए रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज चलो प्रोजेक्टाइल मतलब जार संग जीपीटी हुज z1 ऑफ मास m1 अप्रोचेस ए टारगेट ओके टारगेट उडो अछि बने दो टारगेट बने देली ऑफ मास सॉरी ऑफ चार्ज z2 एंड मास m2 द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज r नॉट से दे दी r नॉट ओके द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अगेन से एनर्जी संगे मांगी छी प्रोपोर्शनलिटी मांगी छी एनर्जी रो फार्मूला काना की कहि परबो एनर्जी जहां भी हवा तुम जानि छो ऑल द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी यस और नो तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट काढो तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला केते 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r एतकी तो तमर भी कांसेप्ट क्लियर अछि तो u इक्वल केते 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 केते z1 z2 बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच केते r नॉट सरला पोटेंशियल एनर्जी पाई गलो तो u इज प्रोपोर्शनल टू z1 z2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r नॉट ई दुइटा भीतर गोटे का थिबा आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z1 z2 अछि नहीं से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z1 z2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r अछि कि नहीं ना त माने ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके आई होप दिस इज वेरी क्लियर बहुत इजी क्वेश्चन माने ऐसे चैप्टर रू मतलब ई टॉपिक रू जदी लेक सब क्वेश्चन तमे करि पारबो आज तुमके क्वेश्चंस भी मिले जेबा हला आज लेक्चर सरला परे चलो नेक्स्ट
चलो नेक्स्ट इंपैक्ट पैरामीटर बढ़िया कॉन्सेप्ट गोटे देख आमर पाखे अल्फा पार्टिकल थिला आमर पाटे अल्फा पार्टिकल थिला काना अछि हला अल्फा पार्टिकलटा जाई कि ना कार संग पीटी हवा कथा गोल्ड संग एंता का होची माने सब अल्फा पार्टिकल तार संग पीटी नहीं हम किछिटा अल्फा पार्टिकलटा याडे भी जीवे है ना कोलिमेट आमे करिछु तो जेहेतु एटा तार चार्ज प्लस 2e और मास अछि 4am प्लस प्लस चार्ज काना हवा रिपेल हवा तो ई बाबूटा जे केनता हवा एंता पड़ेबा के ट्राई करबा यस और नो बुझि परछो कि नहीं जदि अल्फा पार्टिकलटा पूरा न्यूक्लियस सीधा सीधा आसबा बेले तार किछि पाके जाउची हां कि नहीं तापर टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रे कन्वर्ट होची तापर हमें काढुथिलु r नॉट है ना से कांसेप्ट पास रे जाओ एबे अल्फा पार्टिकलटा एबे टिके ऊपर जाउची हला टिके ऊपर जाउची तामान रिपेल हे गला बुझाई जिनिस इंपैक्ट पैरामीटर मीनिंग का इंपैक्ट पैरामीटर मीनिंग हला जिन अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी केनता अछि एंता डायरेक्शन रे अछि बुझि पारुछो आ जिन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एटा हां कि नहीं एटा नहीं सिकी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस लाइन बुझि पारुछो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर ओके मतलब वेलोसिटी रो डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द व्हाट सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एटा सेंटर ना ऐसे कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जिन लाइन जाइथिबा सेटा का लिखि छै द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी बाबू इलो स्टार्ट हो जर्नी एटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the initial velocity of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus center of kinta e line बुझि परछो ई जे डिस्टेंस ता छै this distance is called b okay तमर लागि गुटे फार्मूला मैं कहि दउ छै कि इंपैक्ट पैरामीटर गुटे फार्मूला छै से फार्मूला टिके जानि था हला केंदी कि ना बाहरु छी कहबो बोले तमर लागि एबे सेटा नीडेड नै से हला काडी देबे एटा बड़ जिनिस नै से हला किंतु एवर लागि एटा जानि था कि एटा 1 k z square by kinetic energy by into 1 plus cos theta minus 1 minus cos theta रो रूट ओवर हला एटा फार्मूला मन नै रखले भी हवा गोटे छोट ट्रिक तमके मैं कहि देबी जदी से जिनिस मन रखबा के चाहू छ बेले हला बट फार्मूला जदी मन अचेल बेटर ओके थीटा बेले काना जानिचो k बेले जानिचो k is the constant for the metal and theta is the scattering angle जेटा हमें पढी सारिचो scattering angle अब केन हिसाबे एक्चुअली इंपैक्ट पैरामीटर क्वेश्चन है भी ऐसे सेटा भी कहि देबी ए फार्मूला हला b = kz² by kinetic energy into that much ओके एक्चुअली इंपैक्ट पैरामीटर क्वेश्चन केनता से मोटी बुझो छ चलो तो हेडा ही बुझे देबी का खराब भाबो काई गल चलो तो इंपैक्ट पैरामीटर आउ स्कैटरिंग एंगल चलो मैं तुमको कहि दउ छ एटा हला इंपैक्ट पैरामीटर बुझो के अंदर क्वेश्चन ऐसी घुसबा के किछि नहीं पड़े लॉजिक में तुमके बुझे देबी तापर किछि प्रॉब्लम नहीं ना आउ स्कैटरिंग काना एंगल ओके एटा थीटा एटा b आमे जस्ट के आगर फार्मूला पढनु के k z² by kinetic energy into 1 plus cos theta by 1 minus cos theta रो रूट ओवर एटा काना पाइथिलो इंपैक्ट पैरामीटर तो मैं निजे का भाबो जदी थीटा इक्वल टू पाई कर देबी हला थीटा इक्वल जदी पाई कर देली कांस्टेंट पाई तो cos पाई केते 1 cos पाई -1 तो 1 -1 केते 0 तो ऊपरटा जदी 0 ही होला तो b भी केते ही जीवा जीरो का हवा तो मैं निजे भाबो एटा हमर अल्फा एटा हमर न्यूक्लियस थिला जदी मुई थीटा बेले काना एटा तो ना बुझि पारछो कि नहीं थीटा टा पाई केते बेले होची जेतेले अल्फा पार्टिकलटा एंता आसबा पूरा न्यूक्लियस रो सीधा सीधा तो इंपैक्ट पैरामीटर काना हवा एटा सिना इंपैक्ट पैरामीटर ना केते ऊपरे मु छाडू छै सेंटर ऑफ द एक्सिस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस मु केते ऊपरे जाउ छै मु तो से लाइन रे आछे ना तो बी केते ही जाउ छी जीरो नहीं जाउ छै बुझि पारछो कि नहीं ई फार्मूला तुमके मन रखिछो बेले तुम ई रिजल्ट पाइलो हो कि नहीं बट ई रिजल्ट तुमर लॉजिकली भी तुमके मिली पारबा एटा लॉजिकल नहीं सिकी थीटा जदी थीटा इक्वल टू पाई कलो त माने काना हला थीटा इक्वल पाई कलो त माने न्यूक्लियस रो सीधा सीधा अल्फा पार्टिकल आउछे ना जदी सीधा सीधा आसुचे बेले सेंटर ऑफ द एटा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लाइन रे जाउची आ इंपैक्ट पैरामीटर बेले काना से सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस केते ऊपर गोटा अल्फा पार्टिकल जाउची ई तो तार ऊपर जाउची ना तो बी केते ही गेला जीरो आई होप बुझी पारलो सिमिलरली जदी मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करू जे थीटा इक्वल टू 0 cos 0 केते sin 0 0 cos 0 1 तो 1 + 1 2 1 - 1 0 तोरटा 0 ही गला समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी तो b भी केते ही जाउची
बी भी होची इनफिनिटी बुझी पारलो थीटा इक्वल 0 डिग्री मतलब बहुत दूर करूछ बुझी पारुछ तो से जगह रे b is tends to infinity आ तुम ई जगह रे कहि पारबो कि जे डिस्टेंस था very greater than the distance of closest approach simple basic sense रे भी तुम एटा गोटे करि पारबो I just want to say that thing okay चलो खटा नेक्स्ट तापर आसला limitations of Rutherford model जे limitations आला से आला stability of atom ही Rutherford model cannot explain the stability of atom why because our पास concept थिला that is classical electromagnetism classical electromagnetism says that जेते बेले भी गोटे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करूची हला लिखि देबी okay if it is better चलो लिखि दउचे classical electromagnetism says that any accelerated charge particle any accelerated charge particle emits radiation बुझी पारुछ emits radiation जेन रेडिएशन टा हला हम पढिछु दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और यू कैन से एनर्जी बुझाई जिनिस जेते बेल भी गोटे चार्ज पार्टिकल टा अछि जदी हमर पाखो इलेक्ट्रॉन अछि इलेक्ट्रॉन जे चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v न्यूक्लियस चारिडे बोलुछि तो इलेक्ट्रॉन तार डायरेक्शन चेंज करू जे देखो बुझी पारछो कि नहीं जदी डायरेक्शन चेंज होला तार मीनिंग काना वेलोसिटी भी चेंज होला यस और नो तो एनी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जे कि एक्सेलरेटेड बेले काना वेलोसिटी चेंज होछि ना तो वेलोसिटी रो जदी डायरेक्शन चेंज होछि दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन तो जिन भी चार्ज पार्टिकल जदी तार वेलोसिटी चेंज करूछि एक्सेलरेशन करूछि तो से रेडिएशन इमिट करबा बेले काना एनर्जी कमी जिबा बुझी पारछो कि नहीं जदी रेडिएशन इमिट करबा तो एनर्जी कमी जिबा तो जदी एनर्जी कमी जिबा बेल से आउ से ऑर्बिट जिन ऑर्बिट रे बुलुथिला से ऑर्बिट रे बुली पारबा कि नहीं ताहले काना हबा तोर इलेक्ट्रॉन जदी एंता बुलुथिला तो धीरे धीरे एनर्जी कमी हेले तार रेडियस भी काना हिजिबा कमी आसबा और कमी आसले से न्यूक्लियस संग मिसी जिबा और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जदी मिसी जिबे काना हिजिबा न्यूट्रल बुझी पारछो कि नहीं 2 नंबर पॉइंट पर बुझमा तो मुई काना कहबा के चाहू छी कि जदी भी जिन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अछि से जदी किछि तार वेलोसिटी चेंज करूछि ताहले काना होछि ताहले होछि कि इट एमिट द रेडिएशन जदी तमर चार्ज टा रेडिएशन एमिट करूछि ताहले इलेक्ट्रॉन टा ता डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन टा धीरे धीरे न्यूक्लियस रो आडे पळे आसुछि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन कांसेप्ट क्लियर अछि तो इलेक्ट्रॉन टा जदी रेडिएशन एमिट कला बेल तार एनर्जी कम होछि ना जदी एनर्जी कमी आसुछि बेल धीरे धीरे से न्यूक्लियस आडे पळे आसुछि आ जदी न्यूक्लियस के पळे आसला बेल काना हि जिबा न्यूट्रल हि जिबा एंड नॉर्मली इट टेक्स डीजे लिखि दबो नॉर्मली इट टेक्स 10 to the power -8 सेकंड इलेक्ट्रॉन तार ऑर्बिट टू न्यूक्लियस संगे पिटी हवा के 10 to the power 8 सेकंड लागबा कथा एक्सपेरिमेंटली तमर मैथमेटिकली में काढी चुकी एतकी सेकंड एक्चुअली लागबा कथा इलेक्ट्रॉन जाई कि ना न्यूक्लियस संगे पिटी हवा के बट एंता तो नहीं हवा जदी एंता हता बेल तो एटम का नहीं बनता ना न्यूट्रल ही जाउची ना तो एटम आर बनता था कि एटम तो एग्जिस्ट का नहीं करता ना बुझी पारुछो जदी एटम एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया थिता था बुझी पारुछो कि नहीं तो इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम आउ थरी कहूचे एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन जदी इलेक्ट्रॉन तमर पाखे अछि से तार वेलोसिटी चेंज करूची बिकॉज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग जदी वेलोसिटी रो डायरेक्शन चेंज हला त हमर एक्सेलरेटेड फ्रेम के आसला और जदी गोटे इलेक्ट्रॉन टा एक्सेलरेटेड अछि चार्ज पार्टिकल ना तो से रेडिएशन एमिट करसी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कहिसी हला तो जदी रेडिएशन एमिट कला बेल धीरे धीरे तार एनर्जी काना होची कमी आसुची हो कि नहीं तो जदी तार एनर्जी ता टिके कमी आसबा बेल तार रेडियस भी कमी आसबा तो धीरे धीरे से 10 to the power -8 सेकंड पर न्यूक्लियस में मिसी जिबा कथा बट एंता होची कि नहीं हबा बुझ जदी एंता हता बेल सब जिनिस तो एटम तो तैयार का नहीं आता ना प्लस माइनस कैंसिल हो जाता एटम का नहीं तैयार होता बुझ पारुछो तो as the atom is existing in the nature so this point is not explained by the Rutherford model बुझ पारुछो I hope this is very clear okay next move to the next part then next our part अछि discrete
spectrum of the atom, discrete spectrum of atom. Actually काना होची कि आमे जिन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कलु, ओके आमे जेन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कलु से जगह रे इलेक्ट्रॉन टा गोटे सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुची बोली कंसीडर करा गला। आउ जिन स्पेक्ट्रम टा बाहरला जिन एबे चलो एबे एटा जदी न्यूक्लियस अछि, ओके एंड इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एतकी हमर कांसेप्ट क्लियर अछि जति कि हम जानि छु। जदि इलेक्ट्रॉन से काना एक्चुअली कहले मु सेटा बुझि जे एक्चुअली हमर जेन स्पेक्ट्रम बाहरला काना तार मीनिंग बुझो सुनो। इलेक्ट्रॉन अछि गोटे, अच्छा गोटे दिन सुनो त फर्स्ट एक्साइटेड एंड डी एक्साइटेड, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन बुझी जाओ ठीक है। डी एक्साइटेशन एक्साई टी आई होगा जेते गोटे इलेक्ट्रॉन टा लोअर ऑर्बिट ऊपर के जाउची दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन हला। से टाइम रे एनर्जी ताके देबाक पड़सी, जेते हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी देसु तार पाके एनर्जी रही जेसी और से ऊपर के जेसी बुझि पारुछो। एबे जदी इलेक्ट्रॉन एंदा अछि ना तो ई इलेक्ट्रॉन जदी ऊपर के गला दैट इज एक्साइटेशन जेते हम एनर्जी देसु बुझि पारुछो। सिमिलरली से इलेक्ट्रॉन टा किछि समय से लगे टाइम स्पेंड करिक ना तळके पळेसी बाय एमिटिंग रेडिएशन, हां कि नहीं। तो ऊपरुन तळुन ऊपर के जिबाटा एक्साइटेशन आ ऊपर ऑर्बिट रु तलके जदी आसुचो बेल दैट इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन रे हमके एनर्जी देबा के पड़सी, डी एक्साइटेशन एनर्जी लिबरेट हेसी मतलब बाहर से, ओके। और जेतेले एनर्जी बाहर से से टाइम रे का हम मुई तंगे कहिथिले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिस जेतेले इलेक्ट्रॉन टा हायर एक्साइटेड स्टेट रु लोअर एक्साइटेड के एसी से टाइम में एनर्जी लिबरेट हेसी हला। और से एनर्जी का हमें बोलसो गोटे स्पेक्ट्रम के ताके बोलसो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके। एतकी जदी कांसेप्ट क्लियर छै फुल हिबा क्लियर प्रॉब्लम किछि नै ना। एबे देखो तो जेते बेले हमर ई रदरफोर्ड आया काना बेले कि तमर न्यूक्लियस एंता अछि, एटा तमर फर्स्ट ऑर्बिट हला कि सेकंड ऑर्बिट हला कि 3 नंबर ऑर्बिट हला जहां भी हो तो इलेक्ट्रॉन टा जेन भी रहि पारबा से कहि देले बुझाई जिनिस। तो इलेक्ट्रॉन जदी इलोक भी रहि पारबा इयाडे अछि ऑर्बिट आर इयाडे भी अछि तो इलेक्ट्रॉन सला जेन भी रहि पारुछि हला। इलेक्ट्रॉन कैन स्टे एट एनी ऑर्बिट, सो दैट इज द वुल स्टेटमेंट से जेनटा कि दे देले। तो से कहले कि एटा बुझी भूली जा, हां एटा सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करू छु। तो आर जेन थिला कैन बी एनी वैल्यू, कैन बी एनी वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन कैन jumps from any orbit बुझी पारुछ। से काना बोल देले वी कैन टेक एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ आर एंड इलेक्ट्रॉन टा जेन ऑर्बिट रु भी जंप करि पारबा। और जदी इलेक्ट्रॉन जंप कला तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली काना रिलीज करबा एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जदी इलोक आसुची भाबो एनर्जी लिबरेशन करबा कि नहीं। अगेन से काना से कहले कि इलेक्ट्रॉन इलोक भी रहि पारबा इलोक भी आसी पारबा, इलोक रहिछि इलोक भी आसी पारबा। तो ता माने एंड्रोजिन हेबा एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस इन द एनर्जी इक्वल टू जदी एटा n1 नेली एटा n2 नेली जदी इलेक्ट्रॉन इलोकुन इपते आसुचन तो फाइनल इन एनर्जी en2 माइनस en1 होचे बुझ पारुछ। और से काना बेले कि एनर्जी रो जहा जेन इलेक्ट्रॉन जेन भी रहि पारबा बेले बुझुछ। तो डेली इक्वल हम जानि छु डेली इक्वल काना sc बाय लैम्डा। तो तमर जेन एनर्जी बाहरबा एनर्जी कैन बी एनी वैल्यू क्या काजे बिकॉज तुम जानी से जहाँ कहीचन बोलनु कि तुम ऑर्बिट टा बहुत सारा ऑर्बिट अच्छे और सब ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रही पारबा बुझ ये जिनिस सब ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रही पारबा से कहि देले एंड दैट इज द वुल थिंग जेना कि बोर हमके कहिथिले कि सब ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन नहीं रहन किछिटा फिक्स्ड ऑर्बिट रे का इलेक्ट्रॉन रही पारबे बुझ पारुछ। जेहेतु ई कहले कि सब ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन रही पारबा तो एनर्जी रो वैल्यू भी सब होई पारबा एनर्जी भी 0 रु इंफिनिटी ही पारबा। जदी एनर्जी रो वैल्यू 0 रु इंफिनिटी ही पारबा दैट मींस लैम्डा टा भी कंटीन्यूअस हबा मतलब एनी आर्बिटर वैल्यू कंटीन्यूअस ही पारबा। So lambda can be any value because energy रो वैल्यू बहुत ही पारबा तो lambda is also a continuous value। तो discrete spectrum हेबा था कि बुझुछो कि नहीं हैं लैम्डा टा हमके आमटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मतलब एंता दिसुची पूरा अलग बट कंटीन्यूअस गला बेले काना एटा ऊपर आरोटा ओवरलैप करबा लैम्डा रो वैल्यू पूरा 0 रु इंफिनिटी ही जाउची एंड एंता होची कि नहीं हबा बुझि पारुछो।
तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं से आम जो एक्सपेरिमेंटली बाहरला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं से आमे कंटिन्यूअस बोलिकिना बाहर करिछु एबे जस्ट बट सेंता तो नहीं हबार एक्चुअली काना होची डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम होची एंड एटा के विषय एक्सप्लेन करी नहीं पारले तो ई जिनिस दुईटा एक्सप्लेन नहीं हला से टाइम रे नुआ साइंटिस्ट गोटे एले नील्स बोर तापर से सब जिनिस से लोग एक्सप्लेन करिथिले बुझ पारुछ अब सेटा हमर नेक्स्ट स्लाइड रे एंड नेक्स्ट क्लास रे पढमा सो इन दिस क्लास यू हैव कंप्लीटेड द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन ओके आई होप बहुत क्लियर थिबा नोट्स तुमके मिल जाबा एबे एका प्लस जहां मुई कहली तमर निजर वर्ड टिक लिखबा के ट्राई कर ओके एंड दैट कैन हेल्प यू एंड राइट नाउ तुमके डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन रो प्रॉब्लम भी आज मिल जाबा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कंप्लीट हे गला ना तो सेतिर जेते भी प्रॉब्लम मिलु छी करबा के ट्राई करो ओके चलो तब तक के लिए धन्यवाद एंड राधे राधे।